So the following is the balance sheet of Sandeep Limited as on 31st March 2009. Issued and subscribed capital 10% preference shares of rupees 100 each 4 lakh. Equity shares of rupees 10 each 10 lakhs. 12% debentures 750. Bank overdraft 50,000. Sorry. Sundry creditors 1,40,000, bills payable 35,000. Goodwill, patents are intangible assets to be written off. तो गुडविल और पेटेंट हमको राइट ऑफ करना है, क्रॉस कर देते हैं. फर्नीचर, अब उसके अलावा यू हैव टू अदर लॉसेस टू बी रिटन ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड preliminary expenses. Rest all are asset. Preference dividend is in arrears for 4 years. The following scheme of reconstruction was sanctioned by court and agreed by shareholder. Preference shares are to be reduced to rupees 50 each and equity shares to rupees 2 each, both being fully paid up. मतलब यहाँ पे फेस वैल्यू चेंज हो रही है. फेस वैल्यू चेंज होती है तो क्या एंट्री होती है? This would be an homework problem most probably. Preference shares are to be reduced to rupees 50 each and equity shares to rupees 2 each, both being fully paid up. Preference shares 100 rupees के थे और इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज के. 100 रुपीज के शेयर्स की वैल्यू अब 50 रुपीज हो रही है और इक्विटी शेयर्स जो 10 रुपीज के थे अब उसकी फेस वैल्यू हो रही है 2 रुपीज. सो देर इज रिडक्शन इन फेस वैल्यू. चलो लेट अस सी व्हाट शुड बी द एंट्री. कौन बता रहा है? यू कैन टाइप इट ऑन द चैट बॉक्स. You can use your chat box to write the answer. Problem number 20. Change in the books of Sandeep Limited. Change in face value of preference shares, 10% preference shares. 10% preference share capital of rupees 100 each. Face value is 4 lakh. Same. Converted into 10% preference share capital of rupees 50 each. So your preference share capital would be 2 lakhs and equity capital reduction would be 2 lakhs. Correct. So equity share capital face value 10 debit, capital is 10 lakhs, face value 2 के हिसाब से होगा 2 lakhs and to capital reduction account 8 lakhs. Next, of the preference dividend in arrears 3/4 to be waived off. 4 years का dividend arrears में है. 3/4 is waived off. 4 का 3/4 waived off हो गया तो 1/4 पे कर रहे हैं into 1 divided by 4, that is 4 into 1 divided by 4 is 1 year. 1 year का डिविडेंड पे कर रहे हैं. 1 year का डिविडेंड कैलकुलेट करो कितना होता है. 4 lakh into 10%. 4 lakh into 10%. देखो प्रेफरेंस डिविडेंड 4 years का अरियर्स में है. प्रेफरेंस डिविडेंड 4 years का अरियर्स में है. देयर इज डिविडेंड इन अरियर्स फॉर 4 years. अगर बोल रहे हो 3/4 वेव ऑफ हो गया तो मतलब 1/4 पे किया.
If 3/4 is waived off, means 1/4 is paid. So 4 into 1/4, that is 1 year's dividend is paid. 1 year's dividend paid. 1 year डिविडेंड पे किया, 4 लाख का 10%, दैट कम्स टू 40,000 एंड पेमेंट इज इन कैश. जिनको भी एंट्री आती है, प्लीज राइट डाउन द एंट्री इन द चैट बॉक्स. anyone who is capable of this entry, writing this entry, क्योंकि अभी ये हमने हर प्रॉब्लम में की है एंट्री. so I want you all to write the entry on the chat, in the chat box. A very simple entry. Payment is in cash of preference dividend. Preference dividend is a contingent liability, and currently we say that it is unrecorded liability. It is paid in cash, remaining to be paid in cash. So what should be the entry? अफरोज ओम, वेरी गुड. बाकी लोग सोते हैं क्या मेरे लेक्चर में या नींद में सुनते हैं? यस, रौनक गुड. व्हाट अबाउट अदर्स? निकिता गुड. आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट. मुझे 10 मिनट ज्यादा लगेगा ना चलेगा. वेरी गुड खुशबू. सुदर्शन, वेरी गुड. सब लोग लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई विल वेट 10 minutes टुडे फॉर योर एंट्री. व्हाट अबाउट अदर्स? अदर्स? आकाश. आकाश, आप उल्टी एंट्री कर रहे हो. पैसा आया थोड़ी गया ना. आकाश, यू आर मेकिंग रिवर्स एंट्री. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा. अंजलि, प्रेफरेंस है कैपिटल क्यों आएगा बेटा? आप लोग पेमेंट कर रहे हो ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड जब भी पे करते हैं तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होता है, नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. और हम लोग कैश अकाउंट यूज नहीं करते अंजलि, वी यूज बैंक अकाउंट. ओमकार, कैपिटल रिडक्शन. सीआर लिखोगे तो भी चलेगा. आफरीन गुड. निकिता वंजारी गुड. हाँ, अंजलि. और बाकी लोग अब लेट मी चेक कौन कौन है लेक्चर में. आदित्य, एंट्री लिखो. वैभवी, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक. यस. सचिन, वेरी गुड. चलो, बाकी लोग जो नहीं लिख रहे अभी, मैं उनका क्या करूं मुझे ही नहीं मालूम है. ये अंजलि दो दो है आपके क्लास में. यस, शालिनी कंप्लीट करो. Very good, Pooja. Nikhil, very good. So I think majority of you are now good at writing entries. So entry is capital reduction account debit to bank. Capital reduction account debit to bank. To bank account. रंजीत, आप आजकल आंसर ही नहीं देते हो. मेरे को पता ही नहीं चलता आप लोग क्लास में लेक्चर में हो करके. 40,000. शालिनी शर्मा, बैंक अकाउंट क्या, डेबिट के क्रेडिट? So entry is capital reduction account debit to bank. I think majority of you have done this entry. अब जो नहीं कर रहे हैं, I don't know क्या करना है उनका. Even I am now fed up.
आंसर बोलना चाहिए ना, मेरे को कैसे समझेगा? क्लासरूम में ठीक है आप लोग आंसर नहीं देते हो, बट योर फेशियल एक्सप्रेशन इज सफिशिएंट फॉर मी, बट नाउ इट इज नॉट सो। चलो लेट अस मूव अहेड। अब ये एंट्री सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है? डिबेंचर होल्डर्स टू टेक ओवर प्लांट एंड मशीनरी एट ₹6,50,000। पहले देखो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? लेट अस चेक दैट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? प्लांट एंड मशीनरी इज 6 lakhs। 6 lakh का प्लांट एंड मशीनरी डिबेंचर होल्डर्स आर टेकिंग एट 6,50,000। इसका मतलब देर इज अ प्रॉफिट। अगर 6 लाख का प्लांट 650 में लिया गया तो देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 ऑन प्लांट। एंड इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम, पार्ट सेटिस्फैक्शन मतलब पूरा अमाउंट नहीं पे कर रहे हो, 650 ही पे कर रहे हो। द रिमेनिंग क्लेम शुड बी कन्वर्टेड इनटू 14% डिबेंचर्स। चलो देखते हैं डिबेंचर्स है कितना। 12% डिबेंचर्स है 7,50,000। 12% डिबेंचर्स है 750। आप 6,50,000 उनको दे रहे हो बाय वे ऑफ प्लांट, तो बचा कितना? 1 लाख। बैलेंस अमाउंट कितना है? द रिमेनिंग अमाउंट इज 1 लाख। 1 लाख इज कन्वर्टेड इनटू 14% डिबेंचर्स। अब जिनको भी ये एंट्री आती है पुट इट ऑन द चैट बॉक्स। आई एम रिपीटिंग, क्या बोला गया है? प्लांट एंड मशीनरी जो 6 लाख का है वो हम डिबेंचर्स को दे रहे हैं 650 में। अगर 6 लाख का प्लांट अगर हम 650 में दे रहे हैं तो मतलब 50,000 प्रॉफिट हो रहा है। प्लस जो बचा हुआ क्लेम है, टोटल क्लेम 750 का है। देखो टोटल क्लेम इज ऑफ 750। डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है? 750 का। उसमें से 650 दिया प्लांट से, तो बचा कितना? बैलेंस इज 1 लाख। और वो 1 लाख को क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो 14% डिबेंचर्स में। मीन्स इन शॉर्ट योर डिबेंचर्स आर सेटल्ड। 12% डिबेंचर्स 750 सेटल्ड हुआ है। सेटलमेंट कैसे हुआ है? प्लान दिया है, प्लान देते हुए 50,000 का प्रॉफिट हुआ है और 14% डिबेंचर्स दे रहे हैं हम रिमेनिंग अमाउंट के लिए। नाउ आई वांट यू ऑल टू राइट दिस एंट्री। कोमल ने लिखा है, ओके कोमल इज करेक्ट। धीरे धीरे लिखो, बहुत फास्ट लिख रहे हो आप लोग। यस खुशबू इज करेक्ट। 7,50,000 अश्विनी कैसे आया? आपके बैलेंस शीट में देखो 12% डिबेंचर्स दिया है 7,50,000। ये देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। कैन यू सी द स्क्रीन? दिख रहा है अश्विनी कि 7,50,000 आपका प्लांट है? ओके सो सॉरी 750 आपका डिबेंचर्स है, तो डिबेंचर्स 750 होने की वजह से वो मैंने 750 लिया है। ओके आकाश राइट हो आप। कोमल इज राइट। खुशबू इज राइट। संदेश इज राइट बट अमाउंट नहीं लिखा है। संदेश आधे ही मार्क्स मिलेंगे आपको। डिबेंचर होल्डर मैंने 10 बार बोला है, हम डिबेंचर होल्डर वर्ड यूज नहीं करेंगे। ओम आपकी एंट्री रॉन्ग है। फर्नीचर नहीं है सचिन, प्लांट एंड मशीनरी है। आफरीन इज राइट। श्रद्धा, सुदर्शन रॉन्ग हो आप, आपने आधा अधूरा एंट्री किया है। राहुल मिस्टेक है एंट्री में। प्रॉफिट 50,000 आपने दिखाया नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी 6,50,000 कैसे दिखा सकते हो जब प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू 6 लाख है? तो
प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू पे दिखाएंगे ना राहुल, विच इज 6,50,000 प्रॉफिट दिखाना है। संदेश यार एंट्री इज राइट। सुदर्शन आपकी एंट्री बहुत ब्रेक हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। रौनक इज करेक्ट। ओके, नहीं ओम, योर एंट्री इज स्टिल नॉट करेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट एंट्री की है, लेकिन कुछ लोगों ने अभी तक नहीं समझा है। चलो लेट अस अंडरस्टैंड। हम डिबेंचर्स को फुल्ली सेटल कर रहे हैं। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वी आर सेटलिंग डिबेंचर्स। तो सबसे पहले हम डिबेंचर्स लेंगे। फोर्थ, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिबेंचर्स टोटली सेटल हो रहे हैं तो 7,50,000। यस गिरीश, योर एंट्री इज राइट। दे क्या रहे हैं हम उनको? प्लांट एंड मशीनरी। तो 2, ओमकार करेक्ट। 2 प्लांट एंड मशीनरी। देखो जब भी एसेट आपसे जाता है तो इट इज ऑलवेज शोन एट बुक वैल्यू। अगर आप एसेट किसी को दे रहे हो तो एसेट को हमको बुक वैल्यू पे दिखाना है, एंड बुक वैल्यू इज 6 lakhs। प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू 6 लाख है, हम दे कितने में रहे? 6,50,000 में। तो जो 50,000 एक्स्ट्रा है दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कहाँ क्रेडिट होगा? टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, अमाउंट इज 50,000, ठीक है। एंड जो बैलेंस अमाउंट बचा है दैट विल गो टू जो 14% डिबेंचर। बैलेंस अमाउंट बोला है किस में ट्रांसफर करो? 14% डिबेंचर्स में। और वो बैलेंस अमाउंट हमने निकाला, बैलेंस अमाउंट इन 14% डिबेंचर इज 1 लाख। यस निकिता, अंजलि, ऑल गुड, वेरी गुड। जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एंट्री क्लियर है। इज इट क्लियर? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, पूरा डिबेंचर्स को पे कर रहे हैं तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 750। ओम ध्यान दो, वी आर नॉट ट्रांसफरिंग क्लेम टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। हम लोग क्लेम कहाँ ट्रांसफर, हमने क्लेम डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर नहीं किया। इसके लिए डोंट एवर यूज द वर्ड डिबेंचर होल्डर। नहीं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड देन डिबेंचर होल्डर टू plant and machinery, capital reduction and to 14% debentures. Is that clear? Second जो mistake आप लोगों ने की, कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने जिन्होंने आंसर नहीं दिया, उन्होंने ये सोचा कि प्लांट एंड मशीनरी विल बी 650। नहीं, जब भी एसेट जाता है आपके यहाँ से, आप सेल कर रहे हो ना डिबेंचर्स को, ये एसेट इट इज ऑलवेज शोन एट बुक वैल्यू। उसको हमेशा कौन से वैल्यू पे दिखाना है? बुक वैल्यू पे। कितने में भी लिया हो, लेकिन जो एसेट जा रहा है, टू जब हम एसेट लिखते हैं तो इट हैज टू बी ऑलवेज शोन एट बुक वैल्यू। जो एक्सेस अमाउंट है वो हमारा प्रॉफिट है एंड दैट विल गो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एंड जो बचा है वो तो क्लियरली बोला है डिबेंचर्स अकाउंट में, 14% डिबेंचर अकाउंट। क्या हुआ रंजीत? ओरिजिनली आपके डिबेंचर्स 12% है, बैलेंस शीट में जो डिबेंचर्स दिया हुआ है ये देखो, इट इज 12%, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं 14% में, तो मैंने यहाँ पे 14% लिखा है। हाँ रंजीत, ओके आई गॉट इट, आपने मिस्टेक की थी वो करेक्ट किया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एक जन तो यस Yes, डाल। ma'am. Yes, ma'am. चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। क्रेडिटर्स एग्रीड टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय ₹20,000। क्रेडिटर्स ने अपना क्लेम रिड्यूस किया है 20,000 से, बाय 20,000 मीन्स 20,000 हमारा प्रॉफिट है। पुट द एंट्री ऑन द चैट बॉक्स। पुट द एंट्री ऑन द चैट बॉक्स। बहुत सिंपल एंट्री है। आफरीन करेक्ट। क्रेडिटर्स वाली एंट्री करेक्ट है, दूसरी एंट्री मैंने देखी नहीं है। यस करेक्ट, निकिता करेक्ट, अंजलि करेक्ट,
खुशबू करेक्ट, निकिता वंजारी करेक्ट, सुदर्शन, अफरोज करेक्ट। अफरोज आप मत लिखो, मुझे पता है आप राइट लिखोगे, इसके लिए डोंट टेक पेन। क्रेडिटर्स टू कैपिटल रिडक्शन, ओम सचिन वेरी गुड। शायद अफरोज क्या नेटवर्क इश्यू है या उसे टाइप नहीं हो पाता है। यस अफरोज करेक्ट है। सो वेरी सिंपल एंट्री, सब बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं एंट्री वेस। यस यस अश्विनी वेरी गुड। मेरे को ना चाहिए कि न्यू स्टूडेंट्स आंसर दे, बट ये हमेशा वही लोग आंसर दे रहे हैं। सो एंट्री इज creditors account debit to capital reduction account, and amount is very simple 20,000। वेरी गुड। जिन्होंने भी एंट्री लिखी और जिन्होंने नहीं लिखी बट करेक्ट सोची, फॉर देम ऑल्सो वेरी गुड। बहुत बार लिखना पॉसिबल नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, बट देन मेरे को भी एज अ टीचर आई नीड सम सेटिस्फैक्शन आफ्टर टेकिंग लेक्चर। यस अश्विनी वेरी गुड। Chalo, let us move to the next entry, next part of the adjustment. Bills payable to be paid immediately. Bills payable का amount 35,000 है and you are paying it immediately. Bills payable recorded liability और आप pay कर रहे हो। चलो बताओ what should be the entry? Bills payable pay कर रहे हो, what should be the entry? Yes, Raj correct. ओम आपको क्या हो गया है? सुबह चाय नहीं दिए मम्मी पापा ने? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है? हाँ ओम, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? So mostly everyone has written this entry. कुछ लिख रहे हैं तो I can still wait. Yes, आफरीन आपने ऑलरेडी लिखी थी ना एंट्री? Yes. So entry is bills payable account debit to bank. Yes, very good महक, I am happy कि आपने आंसर दिया, very nice. To bank account and amount is 35,000. Very good. अभी मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को टाइम मिलता है आंसर देने का, वैसे कुछ ही लोग बोल पाते थे ना, एवरीवन इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू आंसर। चलो नेक्स्ट, मैं ना सिक्स एडजस्टमेंट और फिफ्थ एडजस्टमेंट बाद में लेती हूँ। लेट अस गो टू एडजस्टमेंट नंबर 7th। Fifth and sixth adjustment everyone can do, so I'm taking it at the end. Let us take seventh adjustment. A secured loan of rupees 1,50,000 at 12% per annum is to be obtained by mortgaging land and building for repayment of bank overdraft. Bank overdraft repay करना है, bills payable repay करना है। bills payable हमने already payment कर दिया है और reconstruction expenses pay करना है 15,000। सो पहले तो क्या हुआ इधर, हमने लोन लिया है। सबसे पहली चीज है कि लोन लिया है 1,50,000 का, सिक्योर्ड लोन लिया है 1,50,000 का, और वो पैसा आने के बाद उससे किया क्या है, उससे ये किया है कि हमने ओवरड्राफ्ट पे किया है, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पे किए और बिल्स पेएबल पे किया है। बिल्स पेएबल पेमेंट की एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी नीड टू फर्स्ट टेक अ लोन। लोन लेते हैं तो एंट्री क्या होती है? पुट इट ऑन द चैट बॉक्स। व्हेन यू टेक अ लोन व्हाट इज द एंट्री? करेक्ट कोमल। 12% हमने सिक्योर्ड लोन लिया है, अमाउंट इज 1,50,000। लोन लिया तो क्या आता है और क्या जाता है? लोन लिया तो क्या आता है, क्या जाता है?
यस खुशबू, निकिता करेक्ट। यस अफरोज, यू आर ऑल्सो करेक्ट। आपकी आधी एंट्री में ही मैं समझ जाती हूँ कि आपकी एंट्री राइट है। यस अंजलि वेरी गुड। अश्विनी वेरी, अश्विनी एंट्री उल्टी है। पैसा आया ना बच्चा। राहुल गुड, सचिन गुड, आफरीन गुड। आप है ना अश्विनी, हमेशा कंफ्यूज रहते हो ये बात में। यू शुड टेक केयर। सोचो 2 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी रुकी हूँ ना सबके लिए। थिंक वंस कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। कैन वी स्टार्ट? एंट्री इज करेक्ट प्रथमेश। चलो लेट अस राइट डाउन। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12%। आप सिक्योर्ड लोन लिखना चाहते हो या डिबेंचर्स लिखना चाहते हो, आपके ऊपर है। आई ऑलवेज यूज द वर्ड डिबेंचर्स, क्योंकि सिक्योर्ड लोन इज नथिंग बट डिबेंचर्स। सिक्योर्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ये लिखना कंपलसरी है हमारे लिए, क्योंकि ये बैलेंस शीट में इसका यूज होता है। एंड अमाउंट इज 1,50,000। अब इससे हमने क्या क्या पे किया है? इससे हमने पे किया है ओवरड्राफ्ट और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। मैं कंबाइन एंट्री कर रही हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, जो पे कर रहे हैं वो डेबिट। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पे करते हैं तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो देखते हैं ओवरड्राफ्ट कितना है। लेट अस फाइंड आउट ओवरड्राफ्ट कितना है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज 50,000 and reconstruction expenses are 15,000, so total amount paid is 65,000। ठीक है। नाउ लास्ट एंट्री, सब राइट ऑफ करने की एंट्री। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्या क्या राइट ऑफ कर रहे हो देखते जाओ। Let us see our fifth entry. Goodwill, patents, profit and loss account, preliminary expenses to be written off entirely. So let us see कितना है गुडविल। गुडविल है 25,000 टू गुडविल 25,000 टू पेटेंट। पेटेंट कितना है? 15,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,20,000 टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज 45,000। तो ये तो राइट ऑफ हो गया। अभी नेक्स्ट एंट्री में फर्नीचर 25,000, तो फर्नीचर पर लॉस है 10,000 टू फर्नीचर
10,000. Next, stock in trade 68,000. स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू है 80,000, तो लॉस हुआ 12,000 टू स्टॉक 12,000. नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग 580, लैंड एंड बिल्डिंग 650 है, 580 हुआ मतलब कितना लॉस हुआ 70,000 टू क्या हुआ राहुल, कुछ प्रॉब्लम है? टू लैंड एंड बिल्डिंग 70,000. Next, sundry debtors revalued at 80,000. Sundry debtors 90 है, revalued 80 means loss is 10,000. Two debtors 10,000. Two debtors 10,000. Yes, what is the total amount? Total amount कितना है? 10,07,000. चलो, now give me the balance of capital reduction account. प्लस माइनस करो, कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस दो. Om says 8,000. Let us see how all are giving me what answer. I'm waiting for all to answer. चलो देखते हैं. ये प्लस होगा 2 लाख प्लस 8 लाख प्लस कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है वो प्लस और कैपिटल रिडक्शन डेबिट है तो माइनस. सो ये माइनस हुआ 10 लाख माइनस 40 प्लस 50 मतलब 10 लाख 10,000 हो गया प्लस 20 10 लाख 30,000 हो गया माइनस 15,000 10 लाख 15 हो गया 10 लाख 15 minus 10 lakh 7,000 is 8,000. Correct है. Answer is correct 8,000. So entry will be capital reduction account debit to capital reserve. Capital reduction account debit to capital reserve. आप लोगों को बैलेंस शीट आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग आंसर फॉर बैलेंस शीट. अगर नहीं आ रही है तो देन आई शुड टीच इट. टू कैपिटल रिजर्व. कितने लोगों को बैलेंस शीट बनाने नहीं आती है? प्लीज टेल मी. नहीं आ रही है. ओके. ये बैलेंस शीट आप लोगों को पेपर में नहीं आएगी, लेकिन आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस बिकॉज फाइनल अकाउंट आ जाएगा. नहीं आ रही है. ठीक है, एक काम करते हैं, वैसे भी लेक्चर खत्म, ये टाइम खत्म होने आया है. सो विल टेक अ ब्रेक. मतलब ब्रेक मीन्स फटाफट मैं एंड कर रही हूँ लेक्चर एंड विल ज्वाइन अगेन टू कंप्लीट द बैलेंस शीट. ओके, इज दैट क्लियर? चलो, आई एम एंडिंग द लेक्चर एंड विल डू दिस बैलेंस शीट.